ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗਾਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ, ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੀ ਜਿਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ, ਇਸ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਜਹਾਨ ਲਈ, ਸਭ ਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜੋ ਸੀ, ਉਸ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਔਰ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਰਦੂ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੋਹਤਬਰ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ, ਐਡੀਟਰ ਵੀ, ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜੀ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਮੋਹਨ ਸਪਰਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਨਾਮ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਕਵੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਦਾ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਹਿ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਕੋਖ ਸੁਭਾਗੀ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੇਮ ਵੈਰਾਗੀ, ਨੂਰੀ ਮੁਖੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਇਕਾਗਰ, ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਬਾਲ ਬਰੇਸ ਇਥਾਈ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੇ ਕੀ ਨਗਰੀ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਫਿਰ ਬਰਸ ਸਤਾਈ, ਨਗਰ ਬਕਾਲੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ। बाल बरेस इथाई गुजरी, फिर करतारपुरे की नगरी, कीरतपुर फिर बरस सताई, नगर बकाले जोत जगाई, सिमरन सिरजन मह लिव लाई, सीने में प्रगास समाई। गुरु हरकिशन जी प्रीतम बाला, बोले बाबा बसे बकाला, मक्खन शाह ने सद लगाई, लादो रे गुरु लादो भाई, हो गई जागत जोत उजागर, नौवें सतगुर तेग बहादुर। ਔਰ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ, ਕੰਬਦੇ ਤਿਲਕ ਸੀ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਵੀਰਾਨ 'ਚ ਜੋਤਾਂ, ਬੁਝ ਚੱਲੀਆਂ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਜੋਤਾਂ। ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਰੁੱਤੇ, ਕੰਬਦੇ ਤਿਲਕ ਸੀ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਵੀਰਾਨ 'ਚ ਜੋਤਾਂ, ਬੁਝ ਚੱਲੀਆਂ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਜੋਤਾਂ। ਪਰ ਝੱਖੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਗਦੇ ਦੇਖੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ, ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਦੁਖਿਆਰੇ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੀਨੇ ਸੰਗ ਲਾਏ, ਆਖ ਦਿਓ ਉਸ ਜਾਬਰ ਤਾਈਂ, ਪੁੱਛ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਾਈਂ, ਜਿਉ ਮੰਨ ਲੈ ਦੀਨ ਤਿਹਾਰਾ, ਮੰਨ ਲੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਸਾਰਾ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜੁੜੀ ਏ ਖਲਕਤ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਜਲਾਦਾਂ ਲਾਇਆ, ਤਰਾਸ ਤਰਾਸ ਕਰ ਉੱਠੀ ਰਿਆਇਆ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਿਰ ਆਰਾ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਅਗਨੀ ਮਹਿਜਾਰਾ, ਤਿੱਖੀ ਤੇਜ਼ ਮਚਾਈ ਜਵਾਲਾ, ਦੇਗ ਉਬਾਲੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ,
ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਦਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਦੀਨ ਦੀ ਈਨ ਕਬੂਲੇ ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਕੋਹੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਦੇਖ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਸ਼ਾਏ, ਵਾਹ ਏ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਦ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਜਲੇ ਮੁਖ ਸੱਚਖੰਡ ਸਿਧਾਰੇ। ਫੇਰ ਉਠਾ ਤਲਵਾਰ ਗੁਰਾਂ ਤੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੱਕਿਆ ਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੱਕਿਆ ਏ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜਿਆ, ਕਾਲੀ ਰਾਤ 'ਚ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੌਂਕੂੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ। ਫੈਲ ਗਈ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ, ਨਾਨਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਫੈਲ ਗਈ ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ, ਨਾਨਕੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚੰਨ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਾਗਰ। ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਜੋਤ ਉਜਾਗਰ, ਜਿੰਦ ਦੀ ਢਾਰਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪਨਾ ਹੈ ਅਨਹਦ, ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦ ਦੀ ਢਾਰਸ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ। ਪਰ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦਾ ਪਨਾ ਹੈ ਅਨਹਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਹੱਦ। ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਤੀਕਰ, ਭਾਂਤ ਸੁਭਾਂਤੀ ਖਲਕਤ ਤੀਕਰ। ਇਸ ਨੂਰੀ ਚਾਦਰ ਦੀਆਂ ਕੰਨੀਆਂ, ਪਾਵਨ ਤੰਦਾਂ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ। ਰਾਗ ਹੈ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦਾ ਤਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦਾ ਬਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਰਾਗ ਹੈ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦਾ ਤਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਚਾਦਰ ਦਾ ਬਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਤਿਰਾ ਨਿਮਾਣਾ, ਇਸਨੇ ਫੈਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕੀ ਬਾਤ। ਇਸ ਚਾਦਰ ਦਾ ਬਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਸਦ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਫੈਲੀ ਚਾਦਰ। ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਾਗਰ। ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈਨ ਜੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਮੁਕਤਕ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਰੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ प्रस्तुत कर। नमस्कार, मैं अशोक कुमार जैन। मेरे साथी कवि जिन्होंने अभी गुरु तेग बहादुर जी के बारे में इतना अच्छा पढ़ा, उनसे प्रेरणा लेते हुए मेरी कविता भी थोड़ी सी उन्हीं के ऊपर है, पर उनकी जो यात्रा रही है, जैसे बचपन से बड़े हुए हैं, उसके बारे में बताते हुए कविता पढ़ना चाहता हूँ जी। हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर जी। यह गुरु तेग बहादुर की कहानी है जो मैंने सबको आज सुनानी है। ये गुरु तेग बहादुर की कहानी है जो मैंने सबको आज सुनानी है। वो सीधे सादे हृदय वाले थे, उन्होंने प्रभु संग प्रीत लगाई थी। वो सीधे सादे हृदय वाले थे, उन्होंने प्रभु संग प्रीत लगाई थी। खुद से ऊपर रख इंसानियत को, खुद से ऊपर रख इंसानियत को, इंसानों में ज्योत प्रेम की जगाई थी। सब लोग उन्हें सरल कहते थे, सब लोग उन्हें सरल कहते थे। बालकों में वो सोच से सयाने थे। अपनी उम्र के बच्चों से वो देखने में सीधे साधे लगते थे, पर सोच में वो सयाने थे। शांत हृदय कोमल चित्त था जिसका, गुरु तेग बहादुर बड़े ही निमाने थे। बहुत छोटा समझ के बात करते थे, काम करते थे। जो मस्ती में मस्त से रहते थे, बस सोचों में डूबे रहते थे। अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, जो मस्ती में मस्त से रहते थे, बस सोचों में डूबे रहते थे। कहने को पास नहीं था कुछ, मजलूमों के लिए सब सहते थे। कहने को पास नहीं था कुछ, मजलूमों के लिए सब सहते थे। आज तीनों लोग भी मिलकर, आज तीनों लोग भी मिलकर बस उन्हीं की महिमा गाते हैं। यह गुरु तेग बहादुर की कहानी है जो मैंने सबको आज सुनानी है। बहुत अच्छा। आपका ध्यान चाहूँगा। लोगों के दुख दर्द और घाव, लोगों के दुख दर्द और घाव पलकों से चुनकर सीते थे। लोगों के दुख दर्द और घाव पलकों से चुनकर सीते थे। रोया न कभी जो आँखों से, वो खून के आंसू पीते थे। जो भी दुख देखते थे उनकी आंखों से कभी आंसू नहीं बहे, लेकिन मन ही मन में वो बहुत दुख महसूस करते थे। लोगों के दुख दर्द और घाव
पलकों से चुनकर सीते थे, रोया न कभी जो आँखों से, वो खून के आंसू पीते थे। हाथ थाम कर मजबूरों का, हाथ थाम कर मजबूरों का, जीते जी कभी छुड़ाया ना, जो प्रेम की जोत जलाई थी, किसी डर से कभी बुझाया ना। किसी भी तरह का डर हो, औरंगजेब ने उनको धमकाया या उनको त्रासदी के लिए परेशान किया, पर उन्होंने कभी भी अपने इस मुहिम से कि वो भगवान के साथ इंसान को आगे बढ़ाने की बात करेंगे, उन्होंने उसको कभी नहीं बुझने दिया। किस्मत देश की चमकानी थी, उन्हें दिल्ली पार लगानी थी। किस्मत देश की चमकानी थी, उन्हें दिल्ली पार लगानी थी, उन्हें संकट में भारत की नैया धर्मसागर पार लगानी थी। ये महिमा गुरु बकाले वाले की इस जग को आज बतानी है, यह महिमा गुरु बकाले वाले की इस जग को आज बतानी है। यह गुरु तेग बहादुर की कहानी है, जो मैंने सबको आज सुनानी है। वह बिन हथियारों के लड़े किया, वह बिन हथियारों के लड़े किया, लोहा बन खुद को खड़े किया। वह बिन हथियारों के लड़े किया, लोहा बन खुद को खड़े किया। उन काली जुल्म भरी रातों में बिगड़े संबंध वो जोड़ गया। बहुत अच्छा। उन काली जुल्म भरी रातों में बिगड़े संबंध वो जोड़ गया। निश्चय कर घर से निकले थे, निश्चय कर घर से निकले थे, सिर न्यौछावर की ठानी थी। कि उनको पता था कि आज बात यहाँ तक आ सकती है कि आज मुझे अपना सिर न्यौछावर करना पड़ सकता है। निश्चय कर घर से निकले थे, सिर न्यौछावर की ठानी थी। पत्थर भी रोए थे फूट फूट कर, पत्थर भी रोए थे फूट फूट कर, जिस मुस्कान से दी अपनी कुर्बानी थी। पत्थर भी रोए थे फूट फूट कर, जिस मुस्कान से दी अपनी कुर्बानी थी। इस धरती पर जीना मरना तो एक शर्त है जो सबने मानी है। इस धरती पर जीना मरना तो एक शर्त है जो सबने मानी है। यह गुरु तेग बहादुर की कहानी है, जो मैंने आज सबको सुनानी है। अपनी कठोर तपस्या से वो तेग से गुरु तेग बहादुर बने। अपनी कठोर तपस्या से, तपस्या उनकी पहाड़ों पर जाकर नहीं है, उनकी तपस्या इंसानियत की सेवा के साथ है। लोगों के दुखों में अपने आप को शरीक कर कर है, उन्हें मजलूमियत से ऊपर उठाने की बात है। ये वो तपस्या है जो हर इंसान नहीं कर सकता। अपनी कठोर तपस्या से वो तेग से गुरु तेग बहादुर बने। साहस भरकर दिल्ली पहुँचे वो, फिर वो हिंद की चादर रूहानी बने। साहस भरकर दिल्ली पहुँचे वो, फिर वो हिंद की चादर रूहानी बने। है उन्हीं की खून की लालिमा। हम जो आज ये खुशी देखते हैं, मुझे लगता है कि जैसे ये सब कुछ उनके त्याग का परिणाम है, उनके बलिदान की कहानी है, जो खुशियों के रूप में हमारे आसपास है। उन्हीं की खून की लालिमा, जो भारत में खुशियाँ बन छाई है उन्हीं की वीरता की बख्शीश, जो हर घर बहार बन आई है। सूरज भी उनके दर पे आकर उनके तेज का नूर चुराता है। सूरज भी उनके दर पे आकर उनके तेज का नूर चुराता है। चांद सितारे गर देखें उनको, उनका भी दिल घबराता है। उनका तेज, उनका प्रकाश जो उनके चरित्र के साथ हमारे आसपास रहता है। सूरज भी उनके दर पर आकर उनके तेज का नूर चुराता है। चांद सितारे गर देखें उनको, उनका भी दिल घबराता है। बस खत्म कर रहा हूँ। चांदनी चौक के गलियारों को भी गूंज गुरु की तलवारों की देती सुनाई है। चांदनी चौक के गलियारों को भी गूंज गुरु की तलवारों की देती सुनाई है। ये तेग बहादुर की वो कहानी है, ये गुरु तेग बहादुर की वो कहानी है, जो मैंने आज सबको सुनाई है। बहुत अच्छा जी, बहुत धन्यवाद। हिंदी कवि अशोक कुमार जैन जी, जिन्हों ने गुरु साहब की पूरी पावन जीवन गाथा का साढ़े सामने एक अक्स पूरा चित्र पेश किया। अगले कवि उर्दू दे बहुत ही नामवर भी, बहुत मोतबर भी, और जिन्होंने असीं कहने के मॉडर्न भी तो पोस्ट मॉडर्न भी, एक आलोचक भी, अनुवादक भी, प्रोफैसर अजीज़ प्रहार अपने सन्मुख हैं। वो अपनी नज़म साहब बेहद शुक्रिया करदा। आप सब शायर हजरात की खिदमत में चंद रुबाइयात गुरु साहब के तई हदिया अकीदत, इन लफ्ज़ों में, इन रुबाइयात में जो रोशनी है वो गुरु साहब की तहरीक समझिए आप। जब भी हम उनकी पाक शख्सियत को याद करते हैं तो हमारे रगो रेशे में ना जाने कितनी बिजलियां कौंध जाती हैं और हमें उनके दौर से वाबस्ता कर देती हैं।
रुबाई का जहाँ तक ताल्लुक़ है, रुबाई की फॉर्म और स्ट्रक्चर से हम सब वाकिफ़ हैं। जिस तरह शेर के 2 मिसरे सारे ख़याल और पूरी एस्थेटिक्स को समेट लेते हैं, उसी तरह रुबाई के 4 मिसरे जो हैं वो उस ख़याल को बांध लेते हैं। सो गुरु साहब की शख्सियत और उनकी शख्सियत से जो शुआएँ फूटती हैं, उनकी रोशनी इन लफ्ज़ों में शायद आपको नज़र आए। जब दिल में न ईमान की हरारत जागे, जब दिल में न ईमान की हरारत जागे, मुमकिन है कहाँ शौक़ शहादत जागे। जब दिल में न ईमान की हरारत जागे, मुमकिन है कहाँ शौक़ शहादत जागे। कुर्बानी से कौमों को जिला मिलती है, हम सब में ये एहसास ये नीयत जागे। गुरु साहब की शख्सियत ईमान की एक अक्स है, मजहर है, और जो कौमों को रोशनी और नूर बख्शती है। दूसरी रुबाई है, जो आश के ईमा है वो क्या होता है, ईमा की मोहब्बत में फना होता है। जो आश के ईमा है, ईमा ट्रूथ, द सुप्रीम रियलिटी, द सुप्रीम ट्रूथ। जो आश के ईमा है वो क्या होता है, ईमा की मोहब्बत में फना होता है। मिलता है पसे मर्ग ये इनाम उसे, मिलता है पसे मर्ग ये इनाम उसे, आखिर में वो मुस्तहक़ बका होता है। He lives an eternal life. बका मीन्स एटर्निटी। अगली रुबाई है, जब कल्ब ही शोले में बदल जाता है दिल, जब कल्ब ही शोले में बदल जाता है, दाखिल जो यहाँ होता है जल जाता है। बहुत अच्छा। होती है मोहब्बत की हरारत इसमें, इस गर्मी से आहन भी पिघल जाता है। आहन मीन्स तवा, तवे का तस्वर कीजिए आप, तती तवीर। इस गर्मी से आहन भी पिघल जाता है। जाएगी ये सारी ही कमाई हक में, जाएगी ये सारी ही कमाई हक में, पोशीदा है हर एक भलाई हक में। मर के भी ज़माने को वो याद आएगा, जिस शख्स ने उम्र अपनी लगाई हक में। बहुत अच्छा। दोबारा इसको पढ़ता हूँ। जाएगी ये सारी ही कमाई हक में, पोशीदा है हर एक भलाई हक में। मर के भी ज़माने को वो याद आएगा, जिस शख्स ने उम्र अपनी लगाई हक में। गफलत की सलीबों पे चढ़ाओ ना उसे, गफलत की सलीबों पे गफलत की सलीबों पे चढ़ाओ ना उसे, ये एक खजाना है गंवाओ ना इसे। वाह वाह वाह। गफलत की सलीबों पे चढ़ाओ ना इसे, ये एक खजाना है गंवाओ ना इसे। तकदीर संवरती है इसी से सबकी, ये कीमती दौलत भुलाओ ना इसे। आखिरी रुबाई है, जो सबकी हिफाजत के सिवा कुछ भी नहीं। गुरु साहब की शख्सियत को याद करें, हक और ईमान और हिफाजत, किन किन की हिफाजत उन्होंने की है, और आज हम के भी वो मुहाफिज हैं। जो सबकी हिफाजत के सिवा कुछ भी नहीं, वो चीज़ इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। जो सबकी हिफाजत के सिवा कुछ भी नहीं, वो चीज़ इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। और तुमको खबर है कि इबादत क्या है, ईमा की दौलत के सिवा कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा। जो सबकी हिफाजत के सिवा कुछ भी नहीं, वो चीज़ इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। और तुमको खबर है कि इबादत क्या है, ईमा की दौलत के सिवा कुछ भी नहीं। एक गज़ल पेश खिदमत है,
अब गज़ल की फॉर्म और स्ट्रक्चर से हम सब वाकिफ़ हैं। गज़ल का तगज़ुल, गज़ल की गनाइयत, इमायत। मैं एक चीज़ अर्ज़ करना चाहूँगा जी। कि गज़ल हज़रत अमीर खुसरो से लेकर आज तक कितनी सदियों का सफ़र तय करके हम तक पहुँची है, और ये उर्दू शायरी की आबरू कहा जाता है इसे। और इसमें शायर जो कहता है वो तो अपनी जगह पे है। इसकी मकबूलियत का राज ये भी है कि गज़ल बहुत कुछ अनकहा छोड़ जाती है, और उसका फैलाव, उसकी एक्सपेंशन ही हासिल गज़ल है। गज़ल पाठक साहब। इरशाद। ठहर गई है ज़मीं, आसमान भी चुप है। वाह। ठहर गई है ज़मीं, आसमान भी चुप है। यकीन पस्त हुआ और गुमान भी चुप है। वाह। यकीन पस्त हुआ और गुमान भी चुप है। खिरद ने ओढ़ ली चादर ख्याल गर्दिश में। खिरद अक्ल। खिरद ने ओढ़ ली चादर ख्याल गर्दिश में। खला की वुसअतों में ज्ञान ध्यान भी गुम है। खिरद ने ओढ़ ली चादर ख्याल गर्दिश में। खला की वुसअतों में ज्ञान ध्यान भी चुप है। सुनी थी जिससे कभी दास्तां समुंदर की। सुनी थी जिससे कभी दास्तां समंदर की। सफ़र के राज लिए बादबान भी चुप है। बहुत अच्छा। सुनी थी जिससे कभी दास्तां समंदर की। सफ़र के राज लिए बादबान भी चुप है। ये लोग जिनको अभी एहतजाज करना था, प्रोटेस्ट। ये लोग जिनको अभी एहतजाज करना था, ये क्यों है खौफ ज़दा, क्यों ज़बान भी चुप है। ये लोग जिनको अभी एहतजाज करना था, ये क्यों है खौफ ज़दा, क्यों ज़बान भी चुप है। बिखर गई है कहीं कायनात की सरगम। बिखर गई है कहीं कायनात की सरगम। ये कैसे ख्वाब से लर्ज़ां जहान भी चुप है। मिला था जिससे मुसाफिर को रह गुज़र का पता। मिला था जिससे मुसाफिर को रह गुज़र का पता। वो जुगनुओं की डगर, वो निशान भी चुप है। आखिरी शेर है। न दिन निकलता है और रात है कि ढलती नहीं। न दिन निकलता है और रात है कि ढलती नहीं। सितारों कुछ कहो, क्यों खानदान भी चुप है। न दिन निकलता है और रात है कि ढलती नहीं। सितारों कुछ कहो, क्यों खानदान भी चुप है। ठहर गई है ज़मीं, आसमान भी चुप है। यकीन पस्त हुआ और गुमान भी चुप है। बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया। बहुत अच्छा प्रोफैसर अजीज़ प्रहार। ਰੁਬਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਯਕੀਨ। ਜਿਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ, ਜਿਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣੀ ਰੱਤ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਬਹੁਤ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਟਹਿਨੀ ਸੇ ਟੂਟਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਨਾ ਗਿਰਾ। गुलाब टहनी से टूटा, ज़मीन पर न गिरा। करिश्मे तेज हवा की समझ से बाहर हैं के शहीद, जिसे गुरु तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक। है सब जग पयो, जय 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 सुरलोक। कि एक जहान की वो गुलाब यहाँ ज़मीन पर नहीं गिरता, वो शायद इतिहास में उदय हो जाता है। सो बहुत खूबसूरत मंजर। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਦਾ
ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਪ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਆਓ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਾਤਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ। ਆਪਣੀ ਅੱਖ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੱਤੇ ਰੰਗ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀਏ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੱਤੇ ਰੰਗ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ। ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਸਤ ਨਾਲ ਜਰਬ ਜਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਸਤ ਨਾਲ ਜਰਬ ਜਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕਦੇ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅੱਖ ਕਦੇ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਤੇ, ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸੱਤੇ ਰੰਗ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਖੜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਖੜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰ। ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ, ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਤਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਤਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ। ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਧਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ ਖੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ। ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਸ ਖੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ। ਕਿਵੇਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਲਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨੇਊ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੁਸਵਾਈ। ਖੜੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ। ਟੇਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੀਸ ਆਪਣਾ, ਟੇਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਟੇਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੀਸ ਗੰਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਥਰੂ। ਭਿੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਵਗ ਰਹੇ ਨੇ ਅਥਰੂ। ਟੇਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਿਲਾਸਾ, ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਿਲਾਸਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ। ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ, ਦੇ ਰਿਹਾ ਦਿਲਾਸਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ। ਭਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੂਲੀ, ਭਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੂਲੀ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੂਲੀ ਉਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਖੂਹ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੂਲੀ ਉਸ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਜਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਚੂਲੀ, ਖੜੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੇ द्वार। सुन रही हाँ शब्द अपने गुरु का, माई मैं तन पायो हर नाम। मन मेरा तावन तो छूट्यो, कर बैठो विश्राम। माई मैं तन पायो हर नाम। ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ
ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਰਹੇਗੀ। ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇਗ ਦੇ ਘਾਟ ਗੁਰੂ ਉਤਰੇ, ਉਸ ਤੇਗ ਤੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਥੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦਾ। ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਨਵਤਾ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਤਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਿਸ਼ਟ ਕਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਪਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਗਹਿਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਪਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। धन्यवाद पात्र जी। बिना किसी भूमिका के कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है तप तपस्या के सारथी के संग संग हम। तप तपस्या के सारथी के संग संग हम। तप तपस्या के सारथी के संग संग हम, न जाने कितनी झीलों, पहाड़ों, जलाशयों को लांघकर आज फिर एक बार संबंधों की कंदराओं में आपस में गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं। तब तपस्या के सारथी के संग संग हम, न जाने कितनी झीलों, पहाड़ों, जलाशयों को लांघकर आज फिर एक बार संबंधों की कंदराओं में आपस में गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं। समय की धार पर एक बार फिर चलने के लिए मजबूर हैं। वाह। समय की धार पर चलने के फिर। लिए मजबूर हैं एक बार फिर। एक बार फिर अन्याय और नफरत का अंधकार पूरे संसार को गुलाम बनाकर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एक बार फिर अन्याय और नफरत का अंधकार पूरे विश्व को गुलाम बनाकर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ये कैसा वक्त है? हथेलियां बैसाखियों पर हैं। वाह। ये कैसा वक्त है? युद्ध स्थल बना है। ये कैसा वक्त है? हम दहलीज पर बने खड़े हैं। ये कैसा वक्त है? आदमी को अकेला अकेला बना रहा है। ये कैसा वक्त है? फूलों से नाता टूट रहा है, कांटों से रिश्ता जुड़ रहा है। ये कैसा अहम है गुरुदेव, गुरु साहेब, ये कैसी लालसा है जन जन की, सतगुरु जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दे रही, जो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दे रही। आप अपना आलमी संदेश जन जन की नाड़ियों में फिर एक बार संचारित कर दो। संचारित कर दो एक बार फिर। समता समानता की दुदंबी सुना दो। न्याय मुक्त होने की कोई तान सुना दो। फिर एक बार संचारित कर दो। एक बार फिर समता समानता की दुदंबी सुना दो। न्याय मुक्त होने की कोई तान सुना दो। मानवता की नदियां में स्नान करा दो। सच, नितांत सच, बड़ा सच है तेग धारणी। गुरु साहिबान,
आपने तो दिया ही दिया है बहुत कुछ। आपने तो दिया ही दिया है इस बहुत कुछ, लिया कुछ नहीं। नो, आपने तो दिया ही दिया है बहुत कुछ, लिया कुछ नहीं। आपने तो शोषण पीड़ितों को जीवन की परिभाषा का महासागर उपलब्ध करवा दिया था। नो, महासागर। आपने तो दिया ही दिया है बहुत कुछ, लिया कुछ भी नहीं। आपने तो शोषण पीड़ितों को जीवन की परिभाषा का महासागर उपलब्ध करवा दिया था। गुरु साहेब, जड़ हुए समाज को लामबंद करने का नुस्खा बता दिया था। वाह, जड़ हुए समाज को लामबंद करने का नुस्खा बता दिया था। मित्र अमित्र के बीच के भेद लोभ मोह अहंकार से निर्लेप रहने से मिट सकते हैं। ऐसे सूक्त वाक्यों को उर्वरा भूमि में प्रेम सद्भाव की फसलें लहरा उठी थी। तब गुरु साहेब, क्या इमेज है जी। एक बार फिर आओ, देश प्रदेश की मिट्टी को निनादित कर दो। एक बार फिर आओ, देश प्रदेश की मिट्टी को निनादित कर दो। अपनी मीठी सुर युक्त सारमयी सार्थक वाणी से कन कन बोले, जिससे जन जन बोले, उम्मीदों का संसार निर्मित हो। बहुत अच्छा। बंधन मुक्ति के पाठ से उम्मीदों का संसार निर्मित हो। बंधन मुक्ति के पाठ से अशक्त मानव शक्तिमान बनकर दैवी स्वरूप पा सकता है। गुरु साहेब, शस्त्र शास्त्रों के कला साधक ब्रज संस्कृत फारसी तथा पंजाबी भाषाओं के ज्ञान पुंज, शस्त्रों शास्त्रों के कला साधक ब्रज संस्कृत फारसी तथा पंजाबी भाषाओं के ज्ञान पुंज, आपकी वाणी, वाणी की ध्वनि व राग बहुत खूब। हवा की तरह प्राणवान बनाती हैं। बहुत खूब। बहुत मुकर्रर ये हिस्सा हवा की तरह प्राणवान बनाती हैं। आपकी वाणी, जी। वाणी की ध्वनि व राग हवा की तरह प्राणवान बनाती है। बहुत खूब। जल की तरह तरल बनाती है। सूर्य के तप ताप का एहसास कराती है। सच आप हिंद की चादर, सच आप हिंद की चादर। गुरु साहिबान, आपका अलौकिक आत्मोत्सर्ग बलिदान। सच आप हिंद की चादर हैं। गुरु साहेब, आपका अलौकिक आत्मोत्सर्ग बलिदान मानव जाति के अधिकारों का रक्षक बना मनुष्य के लिए, उस मनुष्य के लिए जो अपने नाम सम्मान व धर्म के लिए चिंतित था, कुल बुला रहा था। निश्चित माने आपका निर्णय, आपका कृत्य, जिससे मनुष्य समाजोन्मुखी हुआ। निश्चित माने आपका निर्णय, आपका कृत्य, जिससे मनुष्य समाजोन्मुखी हुआ, रचनात्मक भूमिका निभाने में सक्षम हुआ। नई ऊर्जा के साथ नई संभावनाएं लिए शिखर तक की सफलता के सपने देखता। तत्कालीन समाज समाधान के लिए जूझ रहा था। जब हताश व शिथिल हुआ मानव, सच में उन्हें बकौल सेवक मक्खन शाह लुबाना के गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, और आप सतगुरु नवें गुरु की उपाधि पा गए। नवें गुरु की उपाधि पा गए। जन जन को आश्वस्त कर गए। देश धर्म की पहचान बन गए। आज हमारा नमन, आज हमारा नमन तप त्याग के सारथी गुरु तेग बहादुर जी। हमारा नमन, हमारा नमन। बहुत
ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਭਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੋਹਨ ਸਪਰਾ ਜੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਥਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੀਤ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਮੋਹਨ ਸਪਰਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਨਜ਼ਮ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਰਦੂ ਦੇ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਿਆਂ 'ਚ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਸਰਦਾਰ ਪੰਛੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ उच्चारण करन। पंछी जी एहतराम सामीन हजरात, आदाब। अभी आपने गुरु तेग बहादुर जी के सिलसिले में हिंदी, पंजाबी और उर्दू कलाम सुना। खाकसार भी कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करता है। जी। आओ तुमको हम सुनाएं उस कलम की दास्तां, आओ तुमको हम सुनाएं उस कलम की दास्तां जो था जालिम हुक्मरानों के लिए बरके तपां। और 9वें सतगुरु तेग बहादुर जिनका था इसमें शरीफ और वालिद हरगोबिंद साहिब थे जिनके पास पां। देवी जैसी वालदा थी उनकी बीबी नानकी, कोख से जिनकी मिले थे वस्फ़े नाजुक बेकरां। माता गुजरी जी थी उनकी जिंदगी की हम सफ़र, जो थी उनके कलम और कृपान की भी कदरदां। बहुत अच्छा। उनके बेटे गुरु गोबिंद जी सरबराहे इनकलाब, मिट गया जहनी अंधेरा वो हुए शमसे जहां। और दोनों पोते अजीज जुजार मुहाफ़िज अदू यलगार के, दोनों भाई जाने थे परिवार का दर्द निहाँ। और जोरावर और फतेह सिंह जी जिंदा चिने दीवार में, वो दीवार है लाखों लोगों के लिए एक साहिबा। और कलम उनका रहनुमा था बदगुमानों के लिए, कलम उनका रहनुमा था बदगुमानों के लिए। उनका हर एक लफ्ज राही और मीरे कारवां, जिससे मिटती जाती है कारवां, जिससे मिटती जाती है तशना लबी इंसान की, जिससे मिटती जाती है तशना लबी इंसान की। ये था रूहानी नदी का शीरी तर आबे रवां, ये था रूहानी नदी का, ये था रूहानी नदी का शीरी तर आबे रवां। मुल्क भर में हो गया बैरून गुलामी का असर, मुल्क भर में हो गया बैरून गुलामी का असर। जात पात में हुआ तकसीम जब हिंदुस्तान, जात पात में हुआ तकसीम जब हिंदुस्तान। और हिंदू को मुस्लिम बनाया मौत ही के खौफ से, हिंदू को मुस्लिम बनाया मौत ही के खौफ ने। हो गई तब्दीली ये मजहब की साजिश भी अयां, हो गई तब्दीली ये मजहब की साजिश भी अयां। अर्ज करता हूँ सब के सब कश्मीरी पंडित जुल्म से तंग आ गए, सब के सब कश्मीरी पंडित जुल्म से तंग आए तो सतगुरु के पास आकर खोली अपनी बंद जुबान, खोली अपनी बंद जुबान। हिंदू तब के मानने वाले तशद्दुद के शिकार, हिंदू तब को मानने वाले तशद्दुद के शिकार। जुल्म औरंगजेब के
जुल्म औरंगजेब के रोकर किए सब ने बयां, गुरु जी के सामने रूदाद मजलूमों की थी। गुरु जी के सामने रूदाद मजलूमों की थी, अश्क आंखों में लबों पर दर्द की आहो फुगां। वाह अश्क आंखों में लबों पर दर्द की आहो फुगां, और सुन के उनकी दर्द गाथा सदगुरु ने यूं कहा। वाह सुन के उनकी दर्द गाथा सदगुरु ने यूं कहा, आपके दुख दर्द के तो हम बनेंगे तर्जुमा। आपके दुख दर्द के तो हम बनेंगे तर्जुमा, कहो रंगे से बनाए मुसलमान हमरा गुरु। कहो रंगे से बनाए मुसलमान हमरा गुरु, हम सभी बन जाएंगे तब सब के सभी मुसलमान। हम सभी बन जाएंगे सब के सब वही मुसलमान। सब ब्राह्मण मिल के सब ब्राह्मण चल दिए दिल्ली की जानब, और फिर दिल में सबके आस जागी, बन गई जो कारवां, और फिर सतगुरु चले गांव गांव शहर शहर। और फिर सतगुरु चले चले तो गांव गांव शहर शहर, अज़्म की बारिश बना तो उनका ये अब्रे रवां। अज़्म की बारिश बना तो उनका ये अब्रे रवां, सामना उनका हुआ जब जालिम औरंगजेब से। सुनिएगा, सामना उनका हुआ जब जालिम औरंगजेब से, कुफ्र का फतवा बनाया उसने एक आतिश फशां, और मजहबी फतवे की सतगुर ने उड़ा दी धज्जियाँ। मजहबी फतवे की सतगुर ने उड़ा दी धज्जियाँ, हो गया बेकार औरंगजेब का तीरों कमां। हो गया बेकार औरंगजेब का तीरे कमां, लोहे के पिंजरे में डाला सतगुरु जी को तो लगा। सुनिएगा, लोहे के पिंजरे में डाला सतगुरु को तो लगा, ये भी है वैदानियत का एक मुकद्दस आस्था। ये है काफिर सर कलम हो, इसका काजी ने कहा। ये है काफिर सर कलम हो, इसका काजी ने कहा, और कोई था नहीं इस हुक्म के भी दरमियां, रब की पूजा और इबादत है मेरा बुनियादी हक। रब की पूजा और इबादत है मेरा बुनियादी हक, कह के कर दी सतगुरु ने कारी जी की बंज़बां। कह के कर दी सतगुरु जी ने कारी की बंज़बां, अपनी अपनी है अकीदत अपना अपना धर्म है। अपनी अपनी है अकीदत अपना अपना धर्म है, इसमें दखलंदाजी तो है एक गुनाहे जाविदां। इसमें दखलंदाजी तो है एक गुनाहे जाविदां, काटा सर जल्लाद ने। सुनिएगा, काटा सर जल्लाद ने तो खून में डूबे केस भी। काटा सर जल्लाद ने तो खून में डूबे केस भी, यूं लगा मकतूब भी है आसमां की कहकशां। यूं लगा मकतूल भी है आसमां की कहकशां, सतगुरु की ये शहादत है मुहाफिज धर्म की। सतगुरु की ये शहादत है मुहाफिज धर्म की, ये मुकद्दस जान सारी है बराए कुल जहां। है बराए कुल जहां, उनके हर उपदेश पर सर खम करना लाजमी। उनके हर उपदेश पर सर खम है करना लाजमी, इससे होगी हर ज़रूरतमंद की काविश जवां। इससे होगी हर ज़रूरतमंद की काविश जवां, इससे खिलते हैं महकते फूल हर एक सहन के। इससे खिलते हैं महकते फूल हर एक सहन में, इनकी बानी भी है अपने हर चमन की बागबां। इनकी बानी भी है अपने हर चमन की बागबां, आओ सब मिलकर करें अरदास सतगुर से कि अब जल रही दुनिया में होवे देर पा अमनो अमां। एक मुकम्मल इज्ज़ में अल्फाज शब्द शामिल हुए। एक मुकम्मल इज्ज़ में अल्फाज शब्द शामिल हुए, आपके पैरों में करना है हमें ही गुलफशां। और आखिरी शेर सुन लीजिए मक्ता, आपसे वादा है फिर सी
आपसे वादा है फिर से, ऐ मेरे कारी अजीज, ऐ मेरे कारी अजीज, आपसे वादा है फिर से, ऐ मेरे कारी अजीज, आपका पंछी रहेगा, आपका चिट्ठी रसा। आपका पंछी रहेगा। बहुत शुक्रिया पंछੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ। ਕੁਛ ਗੀਤ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਜਾਬਰ ਦੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਦ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ, ਇਹ ਹਾਰ ਤਕੱਬਰ ਦੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕੂੜ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ ਕਦ ਖੇਡ ਬਰਾਬਰ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ। ਜੋ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸੀਸ ਡਿਗੂ ਉਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਦੋਂ ਰਹੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਬਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਣ ਚੜੂ। ਜੋ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸੀਸ ਡਿਗੂ ਉਹ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕਦੋਂ ਰਹੂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਬਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਣ ਚੜੂ। ਜੈਤੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਾਦਰ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ। ਲੱਖੀ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਕਿਆ ਵਣਜ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖੀ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਕਿਆ ਵਣਜ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਘਰ ਆਪਣਾ ਜਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਲਾਟ ਬਰਾਬਰ ਦੀ। ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਲਾਟ ਬਰਾਬਰ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸੀ। ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜੋ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦਾ ਬੇੜਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸੀ ਸੁਖਣਾ ਉਹ ਸੁਦਾਗਰ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਾਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਤੇ ਜੋਤ ਉਜਾਗਰ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਇਸ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਸ ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਸ ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਸ ਕਲਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ। ਅੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਝਲਕ ਦਿਸੇ ਅੱਜ ਚੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਬਾਬਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਜਾਬਰ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਤਰ, ਕੋਈ ਬਿੰਬ, ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਆਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।